Hello everyone, this is Ejab Online Academy. From today we are learning basic mathematics course for FPSC, SPSC, PPSC, CSS and other one paper exam. And these topics are included in our course: average, ratio, time and work, distance and speed, profits, discount, word problems, edge problems, basic algebra, simplification and percentage. So in this video we will discuss percentage. So basically what is percentage or percentage क्या है? Percentage is a number or ratio expressed as a fraction of 100 and it is often denoted using the percentage sign. So percentage सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट फार्मूला और बेसिक फार्मूला को जहन में रखना पड़ेगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला. परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल टू पार्ट नंबर अपॉन होल नंबर. इट्स अ बेसिक फार्मूला you have to remember. A gets 702 marks out of 850 marks. Find the percentage of obtained mark. This is a simple statement and we have to find percentage. वन पेपर एग्ज़ाम में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन के ऊपर आपको टिक करना होता है. और CSS में जनरल एबिलिटी में आपसे मेथड मांगा जाता है और हमारे इन वीडियोस में दोनों तरह के मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे. तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे. सो 702 मार्क्स इज़ द पार्ट नंबर एंड 850 मार्क्स इज़ द टोटल नंबर. बिकॉज ऑफ द 702 मार्क्स इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 850 मार्क्स. सो वी हैव टू फाइंड परसेंटेज. सो पुट द डेटा इन द फार्मूला. x is percentage, 702 is a part number, 850 is whole number. So x upon 100 equal to 702 upon 850. Cross multiply x is equal to 702 into 100 upon 850. After simplification we get answer 82.5%. So correct option is D. So next statement के तरफ हम चलते हैं. A fruit seller has some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples originally. What is the number? So इसमें सिंपल है कि सबसे पहले हमें ओरिजिनल नंबर को मालूम करना है. तो हमें होल नंबर मालूम करना है और दो चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं. तो ही सेल्स 80% एप्पल्स. इट मीन्स के एक शॉप के अंदर 100% एप्पल्स पड़े थे, उसमें से इस फ्रूट सेलर ने 40% सेल कर चुका है. तो बाकी कितने बचे? 60% बचे. तो 60% इज़ द गिवन परसेंटेज एंड द पार्ट नंबर इज़ 420 बिकॉज दीज एप्पल्स आर रिमेनिंग. So put the data in the formula. 60 upon 100 is equal to 420 upon x. So cross multiply, say 60 multiply by x is equal to 420 multiplied by x 100. So we get answer after simplification 700. So correct answer is C. Next statement की तरफ हम चलते हैं कि what is percentage of numbers from 1 to 70 have 1 or 9 in the digit unit. It means कि whole number is 70 because 1 to 70 means a whole number and we have to find the part number and the percentage. So percentage we have to find from the formula and we have to take the part number from these numbers. तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें 1 और 9 डिजिट काउंट करने हैं अप टू 1 to 70. So firstly we have to count numbers 1 or 9% in 1 to 70. So 1, 9, 11, 19, 21, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61, 69. It means that we have counted all the numbers is 14. So we have gotten the 14 number is a part number. So whole number is a 70 and we have to find the percentage from the formula.
So put the data into formula. X is equal to 100 equal x upon 100 equal to 14 upon 70. So it means that x cross multiply x is equal to 1400 into, so x is equal to 14 multiplied by 100 upon 70. We get answer 20%. The correct option is C. नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम देखते हैं. इन अ सर्टेन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो 8 years of age. The number of students above 8 years of age is 2 upon 3 of the number of students of 8 years of age, which is 48. What is the total number of students in the school? So first of all, we have to find the whole number. So let of number of students is x. The number of students above below 8 years of age is equal to 100 minus 20. मीन्स के एक स्कूल के अंदर 100% स्टूडेंट थे, उसमें से 20% की जो स्टूडेंट्स थे उसकी सबकी एज 8 ईयर बिलो दी 8 ईयर्स है, वो 20% है. तो उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 80% ऑफ एक्स, के 80% ऑफ एक्स इज़ रिमेनिंग है. अब उसमें से दूसरी जो स्टेटमेंट है वो ये कहती हैं कि उसमें से जो 80% बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 48 स्टूडेंट्स हैं, 48 स्टूडेंट 8 ईयर्स के हैं, और बाकी जो अबो दी 48 जो 8 ईयर्स स्टूडेंट हैं, जो अबो दी 8 ईयर हैं, वो हैं 2/3 ऑफ 48. इट मीन्स के हम क्या करेंगे कि 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 48 मीन्स के 48 वो स्टूडेंट हैं जो कि जिसकी जो एज है वो 8 ईयर्स है. यहाँ तक क्लियर. और प्लस दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो अबो दी 8 ईयर्स हैं, जिसकी जो अब 8 ईयर्स से ज़्यादा एज है, वो हैं 2/3 ऑफ 48. 2/3 ऑफ 48. तो हम जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा 32. इट मीन्स के जो 32 स्टूडेंट्स है उसकी जो एज है वो अबो दी 8 ईयर है, और जो 48 जो स्टूडेंट्स हैं उसकी जो एज है वो 8 ईयर है. बाकी जो 20 स्टूडेंट्स है उसकी जो एज है वो बिलो दी 8 ईयर्स है. सो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा वो 100 मिलेगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे. टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट सम ऑफ 5% of A and 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B. Find the ratio of A B. अब इसके अंदर हमें सिंप्लीफिकेशन करके सिर्फ़ और सिर्फ हमें रेशो मालूम करना है. इसके अंदर हम ना बेसिक फार्मूला पुट करेंगे ना इसके अंदर कोई चीज़ हमें मालूम करनी है. जस्ट हमें इक्वेशन फॉर्मेट करनी है, उसके मुताबिक उसके बाद हमें वो क्या रेशो मालूम करना है. तो ये सबसे आसान है. और ये 1 पेपर जो एग्ज़ाम है FPSC के, SPSC के, PPSC के, इसमें ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आते रहते हैं, तो इसको समझना लाजमी है. तो इक्वेशन बनाने का आसान तरीका ये है कि जब भी इंग्लिश के अंदर जब स्टेटमेंट के अंदर इज़, वाज, वर, विल यूज़ हो तो इट मीन्स के इक्वल, के जैसे फॉर सपोज सम ऑफ मीन्स प्लस 5% ऑफ ए एंड मीन्स प्लस एंड 4% ऑफ बी इज़ मीन्स इक्वल 2/3 मीन्स 2/3 ऑफ द सम मीन्स प्लस क्या करना है, दोनों की प्लस करने हैं. 6% ऑफ ए एंड मीन्स प्लस 8% ऑफ बी मीन्स के 8% इंटू बी. सो फाइंड द रेशो. अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जा सकता है. फर्स्टली वी हैव टू मेक इक्वेशन फ्रॉम द अबव डेटा. 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी इस स्टेटमेंट में इज़ यूज़ हुआ है तो हम इक्वल की साइन लगाएंगे. फिर क्या दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहता है कि 2/3
2/3 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। सो यहाँ तक तो हमने इक्वेशन बना दी। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है, फ्रैक्शन के अंदर लिखना है कि सेकेंडली वी हैव टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। 5/100 ए प्लस 4/100 बी इक्वल टू 2/3 6/100 ए प्लस बी 8/100 बी। अब इसे फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/20 ए प्लस 1/25 इज इक्वल टू 6/100 इंटू 2/3। उसके बाद ए है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ए लिखना और प्लस बी 8/100 मल्टीप्लाई बाय 2/3 बी। सो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये जवाब आएगा A/20 माइनस यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए। जहाँ पर इस थोड़ी साइन की मिस्टेक्स हुई है तो आप देख लें। जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें से जो हमें जवाब मिलेगा A/B इक्वल टू 100/75। तो 70 इनको हम 25 से डिवाइड करेंगे दोनों से, तो जवाब जो आएगा A/B इक्वल टू 4/3। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। उसके अलावा कुछ एडवांस लेवल के परसेंटेज के कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं आपको कि बाज़ औक़ात वन पेपर एग्ज़ाम में एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो ये पूछता है कि एक चीज़ है उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, इतनी 25% इंक्रीज़ हुई और फिर 50% डिक्रीज़ हुई। तो हम उसके लिए सिंपल बेसिक फार्मूला तो हम यूज़ कर सकते हैं, मगर उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें स्टेप्स ज़्यादा आएंगे, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो उससे बेहतर ये है कि ये जो जिसमें प्लस की साइन है तो वो इंक्रीज़ के लिए यूज़ होगा, जो माइनस की साइन है तो वो डिक्रीज़ के लिए यूज़ होगा। और अगर वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें वो जवाब मिल जाएगा। और दूसरे तरह के ये क्वेश्चन आते हैं कि वो कभी कभार पूछ लेता है कि परसेंटेज इन पॉपुलेशन की परसेंटेज पूछ लेता है कि 10 साल के बाद इतनी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, तो वो आप बताएं कि कितनी परसेंटेज अब होनी चाहिए, या 10 साल तक ये हुई है तो अब कितनी हो। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट वो आ जाती हैं। तो वो उसके अंदर ये फिर जो जब आफ्टर यूज़ हो तो इट मीन्स के फ्यूचर की बात कर रहा है, और अगो यूज़ हो तो इट मीन्स के पास्ट की बात कर रहा है। तो हम ऊपर वाला जो होगा वो आफ्टर के लिए यूज़ होगा फार्मूला, और जो नीचे वाला होगा, जो सेकंड वाला होगा, वो हमें पास्ट के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म हुआ और ये कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं। तो इफ़ यू फील डिफ़िकल्टी comments us, we will solve all the problems you have given. Subscribe our Ejab Online Academy YouTube channel. Thank you.